بنگلہ دیش ریفرنڈم میں اکثریت کا آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ 65.3%، ووٹرز کی اصلاحات کی حمایت 34.7% نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ ریفرنڈم کے اہم نکات میں کہا گیا حکومت اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی، اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرنڈم لازمی کروایا جائے گا، کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی، صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں 7 خواتین بھی منتخب ہو گئی۔ بی این پی کے افروزہ خان، عشرت سلطانہ، تاشینہ رشدید کامیاب ہو گئیں۔ شمع عبیدی، نایاب وصف کمال اور فرزانہ شرمینہ نے بھی میدان مار لیا۔ بیرسٹر رحمینہ فرحان نے آزاد حیثیت سے کامیابی سمیٹی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا بی این پی کو بھاری اکثریت پر نیک خواہشات کا اظہار۔ بنگلہ دیش میں پرامن اور کامیاب ان انتخابات کے انعقاد پر عوام کو بھی مبارکباد۔ آصف زرداری کا مضبوط جمہوری شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا پیغام۔ وزیراعظم کی طارق رحمان کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ بنگلہ دیش کی نئی قیادت کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں، دونوں ممالک جنوبی ایشیا میں امن، استحکام اور ترقی کے اہداف پر کام کریں گے۔ ایران کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوگی، معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا ٹاک، کہا ایران سے 1 ماہ میں معاہدہ ممکن ہے، ایران کو بہت پہلے ہی معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی صدر پر کڑی تنقید، بولے اسرائیلی عوام کو اپنے صدر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اسرائیلی وزیر اعظم کو کرپشن کیس میں معافی ملنی چاہیے، نیتن یاہو کو معافی نہ دینا شرمناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر اسرائیلی صدر کا رد عمل، کہا نیتن یاہو کی معافی کی درخواست زیر غور ہے، فیصلہ بیرونی یا اندرونی دباؤ کے بغیر کیا جائے گا۔ غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں اہم اعلانات متوقع۔ صدر ٹرمپ اگلے ہفتے غزہ امن بورڈ میں مزید ملکوں کی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی صدر غزہ کے لیے اربوں ڈالر فنڈنگ پلان کا بھی اعلان کریں گے۔ غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے مختلف ممالک نے فوج مختص کر دی۔ اجلاس میں کم از کم 20 ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ غزہ بورڈ آف پیس کا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں بیان، کہا یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار رہے ہیں۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ طالبان افغان زمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان عبوری حکومت انسداد دہشت گردی کے وعدوں کو پورا کرے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی پامالی پر تشویش ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر آج دھرنے کا اعلان۔ علامہ ناصر عباس نے کہا نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی ان کے ڈاکٹرز کو ان کی رسائی دی جائے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا دھرنے میں مطالبات رکھے گئے، مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا، کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شفیع جان نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کارکنوں نے خود روڈ بندش کا اعلان کر دیا، آج پورا خیبر پختونخوا بند ہوگا، ہم 16 فروری تک انتظار نہیں کریں گے، حکومت اگر میڈیکل بورڈ بنائے گی تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ 16 فروری تک انتظار کرنا کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ ہمارے کارکنوں نے از خود، ابھی آپ ایکس پہ جائیں، لوگوں نے خود روڈ بندش کا اعلان کر دیا، پورا خیبر پختونخوا بند ہوگا۔ یہ جو چیز نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نارملائز نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا دائیں آنکھ سے 85% نظر نہیں آتا۔ اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کرنے والے بیرسٹر سلمان صفدر کی 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق بانی نے بتایا کہ بینائی کا مسئلہ ہوا تو بار بار شکایت کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل نے 3 ماہ تک علاج نہیں کرایا۔ دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہونے پر علاج شروع کیا گیا۔ انہوں نے ذاتی ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا، جبکہ طبی معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بتایا گرمیوں میں ریفریجریٹر
जनरेटर की सहूलत मैसर नहीं, हब्स हो जाता है, जबकि मच्छर और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बार बार आंखों से पानी साफ करते रहे, बाकायदगी से ब्लड टेस्ट न कराने की भी शिकायत की। अदालत वुकला से बानी पीटीआई की मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे, बानी पीटीआई के अहल खाना के साथ मुलाकात और मुलाकात करवाई जाए। सलमान सफदर की रिपोर्ट में सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई कॉफी, दलिया और चंद खजूरों से नाश्ता करते हैं, दस्तयाब मशीनों से एक्सरसाइज करते हैं, 3:30 से 4 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाते हैं, 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल खाते हैं। खाने के अखराजात फैमिली अदा करती है। रात में फ्रूट्स, दूध और खजूरें खाते हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर की बोतल दस्तयाब है। शाम 5:30 से सुबह 10 बजे तक सेल में रहते हैं। सेल के अंदर तकरीबन 4.5 बाय 4.5 का टॉयलेट था, जिसको 4 फुट ऊंची दीवार से अलग किया गया था और उसकी छत नहीं थी। सफाई के हवाले से टॉयलेट के बाहर बेहतरी की गुंजाइश है। सेल के अंदर टॉयलेट होने के बावजूद कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी। किसी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा। सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल समेत तमाम सहूलतों का जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट खुद कैद तन्हाई के बयानी की नफी है। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स को एक जैसा कहा। बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा उनका इलाज नहीं कराया गया, उन्होंने सिर्फ ये कहा वो मुहैया करदा इलाज से मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की उन्हें इलाज की सहूलत दी गई, आंख की तकलीफ पर उन्हें पिम्स पिलाया गया। हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से कैदियों की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। इस इलाज और कैद पर सियासत करना भी जुर्म ही है। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। सलमान सफदर की रिपोर्ट ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर बयान, कहा रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई दीगर कैदियों की निस्बत ज़्यादा मराद से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट में उनके रोज़मर्रा मामलात और खुराक के मनसूबे की तफसीलात शामिल है। आलमी मीडिया में अलीमा खान और बानी पीटीआई के खानदान के दीगर अफराद की जानिब से जेल में मुबैना बदसलूकी और नाकिस हालात के हवाले से जो बयानिया पेश किया जा रहा था वो बेबुनियाद साबित हुआ। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन जाया हो गई। सलमान अकरम राजा की तनकीद, कहा उन्होंने तो कहा था 20 मिनट इलाज के बाद आंख ठीक हो गई। बानी पीटीआई को 3 माह से आंख की तकलीफ थी, किसी डॉक्टर को जेल में नहीं बुलाया गया। हम हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई के जाती डॉक्टर्स को जेल भिजवाया जाए। सुहेल अफरीदी ने कहा फैमिली के सामने बानी पीटीआई का इलाज होगा, हम तब मुतमईन होंगे। किसकी कोताही से बनाई गई और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। बार बार कहते हैं ये पहले भी झूठे थे, आज भी हैं। इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं। महमूद खान अचकजई को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। जुनैद अकबर बोले हम मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इदारे चाहते हैं। जो आइन को नहीं मानता मैं उसको दहशतगर्द समझता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत, मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, अहम कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर भी बातचीत। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा 4 साल हुकूमत के बावजूद मियां वाली तरक्की ना कर सका। इस बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे, कहते थे लीगी दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई। वो लोग मियां वाली आकर देख लें, जो सहूलियात लाहौर में है वो ही मियां वाली को दी। मरियम नवाज का मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़राई कॉलेज बनाने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, दावों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। किसी को अवाम की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। आपको अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे। ज़राई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हज़ार रुपए पहुंचेंगे। वज़ीर आला KP का तरलाई कलां इमाम बारगाह का दौरा। मुतासरा खानदानों से घर जाकर मुलाकात की। लवाहिकीन से इज़हार यकजहती किया। सुहेल आफरीदी ने कहा, इबादतगाह में खुद कुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सूबाई हुकूमत लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। तरलाई वाक़े पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत। फैसल करीम कुंडी का हमला आवर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास की बहादुरी को सलाम। शहीद ओन अब्बास को बादअज़ा शहादत तमग़ाए शुजाअत अता करने की सिफारिश। दो साल में बिजली के तरसीली नुकसानात 600 अरब रुपए से तजावुज करने का इंकशाफ। दिसंबर 2025 तक मुल्क भर में नेट मॉनिटरिंग की इस्तेदाद 7,000 मेगावाट तक पहुंच गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 2,15,50,000 तक जा पहुंची। कौमी असम्बली के वक्फे सवालात में वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी के तहरीरी जवाबात। हुकूमत का मुल्क में 2,223 फीडर्स पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग का एतराफ। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 814 में से 604 फीडर्स पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। सेप्को के 707 से 407 फीडर्स पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। लेस्को, आईसीको, गैपको और फेस्को के किसी फीडर पर 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं। जमात इस्लामी का रमजान के बाद IPPs माफिया के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में 41,000 स्कूल्स में से 28,000 में सहूलियात नहीं। स्कूल्स का बजट जागीरदार हड़प कर जाते हैं। कब्जा ग्रुपों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। नौजवान उठेंगे तो उन्हें हक मिलेगा। ब्रितानिया का यूक्रेन को $205 मिलियन देने का वादा। नेटो वज़ीर दिफा इजलास में ब्रितानी वज़ीर दिफा ने कहा, इमदादी रकम यूक्रेन को अमरीकी हथियार खरीदने में मदद देगी। शराकतदार रूस पर पाबंदियां बढ़ाएं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा, यूक्रेन में जारी रूसी हमलों पर अफसोस है। जंग का खात्मा चाहते हैं। लोग बहुत तकलीफ में हैं। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा सिर्फ 2 रोज की दूरी पर। पाक भारत मुकाबले के लिए कोलंबो में स्टेडियम तैयार, माहौल गर्म। पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स फरोख्त, होटल फुल पैक, कमरे नायाब, कराए आसमान पर। कोलंबो का गैर मुतवक्के मौसम, पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासिर होने का खदशा।